Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to start unit 13. Its title is Be Clean, Stay Healthy. My dear fellow teachers and dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. How we are going to cover all the SLOs in different lectures. First we'll talk about it and then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we'll discuss about common and particular names, and we'll cover the SLO recognize more particular names of person, places and pets. Lecture 2, under the title of pronunciation skills, we'll discuss about weak forms and we'll cover the SLO to pronounce the weak forms of a and the in simple phrases and of be in contractions. Lecture 3, we'll start reading and understanding this unit and we'll cover the SLO use pictures or ribbons in the text to increase understanding. Lecture 4, we'll complete reading and comprehension of this unit and we'll cover the SLO to use pictures or ribbons in the text to increase understanding. Lecture 5A, under the title of reading and critical thinking, we'll discuss how to follow sequence in a procedure and we'll cover the SLO to follow sequence in a simple procedure or picture map. Lecture 5B, under the title of read and think, we'll discuss about how to read labels or food items and we'll cover the SLO to read familiar words appearing on a variety of reading material such as food labels, advertisement, coins, currency notes, etc. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we'll discuss how to use polite expressions to seek attention and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in groups to use polite expressions to seek attention. So this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of the unit is Be Clean, Stay Healthy. Its theme is health, participatory citizenship, personal cleanliness and hygiene, avoiding littering. Yes, my dear students, Be Clean, Stay Healthy क्या मतलब है? साफ सुथरे रहो, सेहतमंद रहो, यानी सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरे रहो, राइट? और इसका थीम है कि जो हमारी हेल्थ है, हमारी सेहत है, उसमें हर शहरी को अपना हिस्सा डालना है. अगर हमारा घर साफ है और हमारा मोहल्ला, हमारी गली साफ नहीं है, तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते, राइट? इसलिए हर फर्द का मुआशरे में ये फ़र्ज़ है कि वो सफाई ना सिर्फ अपने घर तक बल्कि अपने एरिया, अपने शहर और अपने मुल्क की सफाई की ज़िम्मेदारी ले. हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हम अवॉइडिंग लिटरिंग, यानी हम इधर उधर गंद ना फैलाएं. घर में हम कहीं पर भी रैपर फेंकते हैं, नहीं, हम डस्टबिन में रैपर फेंकते हैं. तो हम पार्क में फिर कैसे रैपर कहीं पर भी फेंक देते हैं? किसी भी पब्लिक प्लेस पे, रोड पर हम कैसे केला खाकर उसका छिलका फेंक सकते हैं? बेटा, जैसे ये घर में बुरी बात है, इसी तरह पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी आप घर से बाहर हैं, स्कूल में, पार्क में, हॉस्पिटल में, रोड पर, ये उतनी ही बुरी बात है. और जैसे अपने घर को साफ रखना हमारे लिए लाजमी है, इसी तरह किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो उस जगह की सफाई हमारे पर लाजिम है. बल्कि हमारा मज़हब तो हमें ये सिखाता है कि अगर आप कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह को जिस हालत में आपने पाया उससे अच्छी हालत में छोड़ के आएँ, राइट? और अगर हम नहीं करते तो फिर हम बहुत सी मुश्किलात का, बहुत सी परेशानियों का शिकार होते हैं. और इसी चीज़ का जिक्र इस स्टोरी में है जिसमें लेट्स सी क्या हुआ. It's a bright Tuesday morning. The teacher enters the classroom. ये एक मंगल का दिन है, सुबह एक खूबसूरत सुबह है और टीचर अपनी क्लास में आती हैं. सब बच्चे उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर जब टीचर अटेंडेंस वगैरह लेने के बाद अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम आदिल है उनसे कहती हैं यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए और मुझे बताइए आदिल, वाई वर यू एब्सेंट द होल वीक? आप पूरा हफ्ता गैर हाजिर क्यों रहे? वॉज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या आपके साथ सब ठीक था? अब आदिल ने, ये देखिए एक डायलॉग फॉर्म है बेटा,
टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करें। आदिल ने क्या जवाब दिया, टीचर आई वॉज इल एंड आई स्पेंड द होल वीक इन बेड। मैं बीमार था और मैंने पूरा हफ्ता बिस्तर में गुजारा। व्हाट हैपेंड टू यू, आपके साथ क्या हुआ? आई ट्रेवल्ड विद माई फादर, ऑन आवर वे आई अटेंडेड अ पब्लिक टॉयलेट, द टॉयलेट वॉज नॉट क्लीन। मैं अपने वालिद साहब के साथ सफ़र पे जा रहा था और रास्ते में मैंने एक पब्लिक टॉयलेट यानी एक आम किसी जगह पे जो सब लोगों के लिए टॉयलेट बना हुआ था वो मैंने यूज़ किया, और वो टॉयलेट क्योंकि साफ़ नहीं था तो इसलिए वहाँ से मुझे जर्म्स लग गए, जरासीम लग गए और मैं बीमार हो गया। अब बेटा यहाँ आप सोचिए कि जब हम पब्लिक टॉयलेट एक बंदा यूज़ करे और उसको क्लीन करके बाहर निकले तो क्या नेक्स्ट बंदा जो यूज़ करेगा वो सेफ़ रहेगा, है ना? और अगर एक बंदा उसको मैस करके गंदा करके आ गया है, साफ़ नहीं किया, कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करेगा तो कितनी, एक तो ये वैसे भी गैर अखलाकी कितनी गंदी बात है, और दूसरा ये बहुत सी बीमारियां फैलाने का बाइस बनती है, राइट? दैट्स वाई पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक प्लेसेस, बेटा ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इनको साफ रखना चाहिए। अब टीचर ने कहा इट्स गुड टू सी यू हेल्दी अगेन। शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी कि आप ठीक होके वापस आ गए हैं। थैंक यू टीचर। आदिल ने कहा शुक्रिया टीचर। Students, now teacher is telling them, always remember unclean places make us ill, so keep your surrounding clean. जो गंदी जगह होती हैं, अनक्लीन प्लेसेस होती हैं, वो हमें बीमार करती हैं, इसलिए अपने सराउंडिंग, इर्द गिर्द माहौल, हर जगह को आपने साफ सुथरा रखना है। आफ्टर अटेंडिंग द टॉयलेट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड ड्राई। जब भी आप वॉशरूम से निकलें अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं और उनको ड्राई करें और सैनिटाइज़र लगाएं। अब तो बेटा हमें ये भी पता चल गया ना कि सैनिटाइज़र भी हमने यूज़ करना है। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बिल्कुल ज़ाया ना करें, ओनली यूज़ एज मच वाटर एज यू नीड। अब ये ना हो सफाई के चक्कर में हम पानी को ज़ाया करना शुरू कर दें और फिर हम पानी के बगैर एक और मुश्किल का शिकार हो जाए। इसलिए बेटा जो अच्छे समझदार लोग होते हैं ना वो बहुत माइंडफुल होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, ठीक है? सफाई का भी ख्याल रखना है लेकिन उसमें हमने चीज़ों को ज़ाया भी नहीं करना। सारा, यस टीचर, आई डू क्लीन द प्लेस वेयर आई सिट। जहाँ पर भी मैं बैठती हूँ मैं उस जगह को साफ करती हूँ। टीचर, गुड सारा, वी शुड ऑल्सो कीप आवर स्कूल, क्लास एंड प्ले ग्राउंड क्लीन। हमें अपने स्कूल, अपने कमरा जमात और खेल के मैदान को साफ रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन, अपनी सफाई का। अच्छा बेटा, हाइजीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। हाइजीन का मतलब सिर्फ सफाई, मतलब आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ धोए लेकिन जिस पानी से आपने हाथ धोए वो साफ़ नहीं था तो आपने हाइजीन को अवॉइड कर दिया, आपने हाइजीन फॉलो नहीं किया। इसलिए हाइजीन का मतलब होता है सफाई जिसमें सुथराई भी हो, सफाई और सुथराई, नीट एंड क्लीन वे, जिसमें आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपको कहीं से जरासीम ना लगे, आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप जो फूड खा रहे हैं वो स्टेल ना हो, आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं वहाँ गंदगी ना हो। हाइजीन में हर वो चीज़ जो आपके सराउंडिंग या जो आपके इस्तेमाल में है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये जब हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। आई नेवर थ्रो रैपर्स ऑन द ग्राउंड। अब रेहान कह रहा है कि मैंने कभी भी जो रैपर्स खाने पीने के बाद जो कागज़ हैं जो उसके रैपर्स होते हैं उनको मैंने ज़मीन पर नहीं फेंका, और मैं दूसरों को भी ये अच्छी बात बताता हूँ। तो फिर जो हम खाते पीते हैं उनकी जो रैपर्स हैं वो कहाँ फेंकने चाहिए? डस्टबिन में। शाबाश, वेरी गुड रेहान। वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, डेस्क एंड चेयर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सफाई का मतलब, अब हम डस्टबिन में रैपर्स तो फेंक रहे हैं लेकिन दीवारों पर लिख रहे हैं, जहाँ अपनी टेबल है उस पर लिख रहे हैं, डेस्क पे लिख रहे हैं, तो वो भी तो हम मैस कर रहे हैं ना, वो भी तो हम किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। तो सफाई के साथ साथ चीज़ों का ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है, राइट? स्टूडेंट्स, अब बच्चे कहते हैं श्योर टीचर, वी ऑल शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। अब अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को साफ सुथरा रखना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। अ क्लीन एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड लर्न मोर क्विकली। क्योंकि हम साफ़ सुथरे माहौल में ज़्यादा अच्छे, बेटा हमारा जहन भी फ्रेश रहता है ना, तो हम अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं और ये हमें अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। एज सेड इन हदीस, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्लीनलीनेस इज़ द हाफ ऑफ द फेथ। सफाई निस्फ ईमान है। मतलब हमारा ईमान, देखिए ईमान को जब इंशाल्लाह, अभी आप छोटे बच्चे जब बड़े होंगे आप देखेंगे ईमान एक इतनी बड़ी चीज़ है और सफाई आधा ईमान है।
کیونکہ مسلمان نے تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، کم از کم 2 مرتبہ تو ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں صبح اور شام کو، تو ہم کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم صاف نہ ہوں؟ اس لیے بیٹا ہم صاف ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو صفائی اس طرح سے ہمارا نصف ایمان بن جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے والیوم 1 پیج نمبر 203 اور حدیث نمبر 223 ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے اور خود کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے اسکول کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ ہم چھوٹے ہیں تو ہم کیسے کریں۔ بیٹا جو بھی، جیسے آپ نے پینسل شارپ کی ہے اس کا کچرا آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، آپ نے ایک فار ایگزامپل کیلا کھایا ہے اس کا چھلکا ڈسٹ بن میں ڈالیں، کوئی چیز تھرو نہ کریں، اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں، اپنے پاس ایک چھوٹا ڈسٹر رکھیں، اپنے ٹیبل کو صاف کریں، اپنی چیئر کو صاف کریں، بریک کے بعد اپنے شوز صاف کریں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں، اور جب آپ سب ایسا کرنا شروع کریں گے تو ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے وہ صاف ستھری رہے گی، رائٹ، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا پورا ملک صاف ستھرا رہے گا۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں، صفائی کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، اچھی صحت ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves. اللہ صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو ہم نے صاف ستھرے رہنا ہے، رائٹ؟ So that's it for today. انشاءاللہ کل ہم اس کے گرامر کے لیکچر سے اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے، اور بیٹا جو اچھی باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور عمل میں لانا ہے۔ اور میں ہر مرتبہ آپ کو کہتی ہوں عمل کا مطلب صرف کلاس روم یا اسکول نہیں ہے، ویئر ایور یو آر، آپ نے اچھے بچوں کی طرح، ذمہ دار بچوں کی طرح، سمجھدار بچوں کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ آپ نے کہیں گندگی نہیں پھیلانی بلکہ صفائی رکھنی ہے۔ شاباش۔ سو دیٹس اٹ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔